यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इकोनॉमिक्स विथ मी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th NCERT का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी काम को मैनेज करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। देखो, बिजनेस तो सब लोग खोलते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज हर लोग चाहता है कि एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खोले, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी जो है सक्सेसफुल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तब होगा जब उसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट का काम कौन देखते हैं? मैनेजर्स देखते हैं। तो हम लोग आज इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1। और चलो पहले ये जो पहले बहुत अच्छा सा एक केस स्टडी दिया है इसको पढ़ते हैं। मैनेजमेंट एट टाटा स्टील, फाउंडेड इन 1868 बाय जमशेदजी निसरवानजी टाटा। Founded in 1868 by Jamshedji Nisarwanji Tata, the Tata Group is a global business conglomerate operating in over 100 countries across 5 continents. His strong sense of values and spirit of innovation and entrepreneurship are a legacy that continues to guide Tata companies till date. He had 4 goals in life. Setting up an iron and steel company. देखो यहाँ पे 4 goals जो थे उनके. He had 4 goals in life. 4 goals in life: setting up of an iron and steel company, a world class learning institutions, a unique hotel and hydroelectric plant. कुछ 4 गोल्स थे उनके। पहला कौन सा गोल्स था? सेटिंग अप एन आयरन एंड स्टील कंपनी, पहला गोल्स था। सेकंड क्या था? अ वर्ल्ड क्लास लर्निंग इंस्टीट्यूशन, जो कि है भी टाटा आयरन टिस करके नाम एक इंस्टीट्यूशन है जो कि मुंबई में है। अ यूनिक होटल, जो हम लोग जानते हैं ताज होटल, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट. Only the hotel became a reality during his lifetime with the inauguration of the Taj Mahal Hotel at Colaba waterfront in Mumbai on 3 December 1903. तो भाई ताजमहल का कब बन के रेडी हुआ था? वो था 1903 में, ठीक है। At the cost of 11 million worth 11 million in 2015 prices. At At the cost of 11 million worth 11 billion in 2015 prices. 11 million में बना था 1903 में, और आज उसकी क्या प्राइसिंग थी 2015 के कंपैरिजन? तो वो था 11 बिलियन. At that time it was the only hotel in India to have electricity. उस टाइम पे ये एकमात्र ऐसा होटल था जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी का जो है सोर्स था. He believed that satisfied workers create satisfied workers, and in lieu to this principle he paid all his workers gratuity provident fund well before it was made mandatory. His management skills were clearly evident when minute details were chalked in planning and building the entire city of Jamshedpur. The value and principle that have governed the business of for a company are enshrined in the Tata Code of Conduct TCOC. From an early foray into steel and automobiles to staying abreast of the latest technologies. The Tata Group today has 29 publicly listed Tata enterprise, which include Tata Steels, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservice, Titan, Tata Communication, and Indian Hotels. The group has a combined market capitalization of around $103.51 billion in 2016 and 17. Tata has a strong sense of social responsibilities. They balance economic prosperity, environmental responsibility, and social benefits for the community. In India, they are a partner in progress with Odisha and believe in taking its stakeholders forward in its journey of growth. Tata Steel Thailand is one of the first 30 companies that joined UNICEF in child-friendly business in the Children Sustainability Forum to make a commitment in protecting children's rights. Tata Steel Europe's Community Partnership Program Future Generation with sub-themes of education, environment, health and well-being work across the UK, assisting job and wealth creation by supporting small and medium business with finance and business premises. They also play a constructive role in addressing climate change both by reducing carbon footprints and by creating high-performance steels that lead to fuel-efficient vehicles and energy-efficient buildings. The environment management system meets the ISO 14001 standards at all of their main manufacturing sites. Shaped by a lineage of sound and straightforward business principles, the Tata Group is built on a foundation of trust and transparency.
Building such huge enterprises, sustaining and running them profitably are possibly only through effective and efficient management and coordination at all level. ऐसे बड़े से कंपनी को स्टार्ट करना और उसको एकदम प्रॉफिट के वे में चलाना, ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। और ये कैसे हो सकता है? ओनली थ्रू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट्स के थ्रू होता है। ये कैसे हो सकता है? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट्स एट ऑल लेवल्स। यहाँ लेवल्स का मतलब है टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन आया है। The above case is an example of a successful organization which is amongst the top companies in India. It has risen to the top because of its quality of management. एक इंडस्ट्री जो कि हम लोग अभी जो केस पढ़े हैं टाटा के ऊपर, ये वन ऑफ द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया का। और ये इतना टॉप पे क्यों गया है? बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। अपने क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट्स के कारण ये जो है कंपनी इतना आज ऊपर गया है, इतना टॉप पर है। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट कब ज़रूरत होता है? सारे ऑर्गेनाइजेशन पे मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। दोज मैन्युफैक्चरिंग हैंडलूम्स, trading in consumer goods, or providing hairstyling services, and even in non-business organizations. Let us take another example. Smita Rai is a 38-year-old entrepreneur who grew up in a rural district called Namchi, South Sikkim. She was very good in art and craft, particularly wax models. She loved to make candles. Often she make into toys and small pieces of arts with wax and use it as a gift for her friends and relatives. She was loved and appreciated for this. Smita was never happy with the condition of the women in her district, as most were poor and jobless. So she planned to do something to solve their problems because she knew that imparting skills for livelihood is needed, but she had no idea of how to implement her idea. In August 2012, she met Abhishek Lama, the branch manager of NEDFI, Namchi Brand, a financial corporation which support local people with skill development programs and also channelize them into revenue generating activities. Smita got interested. I love making candles, then why not convert my hobby into a venture and involve this rural woman also, she thought. This led to the establishment of Namchi Designer Candles with top of NEDFI, some financial institutions and support from different stakeholders in various dimensions. यहाँ इन्होंने अपने माइंड में जो आइडिया आया था उस आइडिया को इन्होंने रियलिटी में कन्वर्ट किया। यही तो एक एंटरप्रेन्योर का एक क्वालिटी होता है कि वो अपने आइडियाज़ को जो है एक रियल वे मतलब उसको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। Since then, the women have never looked back despite challenges. The women also faced a lot of harassment, but they could overcome all those troubles. Namchi Designers Candles has 100% women as employees, and they also produced varieties of candles. During Diwali, they produced customized candles made for the occasions. These Diwali-themed candles had been a success in Sikkim as its demand increases on a yearly basis. Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Woman Entrepreneur of the Year 2015-2016 for Sikkim and Sri Mata Shankar Mission of Guwahati on 26th April 2018 at New Delhi. A typical day in Smita's life consists of a series of interrelated and continuous functions. She has to plan a special festive collection for Diwali. This means organizing more funds and recruiting more workers. She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding delivery of goods are met. In the course of the day, she meets customers for a general feedback and any suggestions that they must have. Smita is managing Namchi Designer Candles. So is the principal managing your school. They all manage organizations, schools, hospitals, shops, and large corporations are all organizations with diverse goals that are aimed at achieving something. No matter what the organization is or what its goal might be, they all have something in common: management and managers. You have observed that Smita's work as a manager consists of a series of different activities or function aimed at achieving the goals of the organization. यानी इतना देर से जो है हम लोग स्मितास की कंपनी और उसने कैसे इस कंपनी को रन किया उन सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया होगा
जो स्मिता वर्क जो कर रही है एज ए मैनेजर कंसिस्ट कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे कंसिस्ट किया हुआ है। और फंक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, उनका गोल्स क्या था कि वो अपने कंपनी को सक्सेसफुल बना सके और कंपनी में जिस हिसाब से डिमांड आएगा उसको पूरा कर सके। दिस इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शन आर अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट जो चीज़ है ये क्या है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इसको हाईलाइट कर लो। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, क्योंकि ये केस स्टडीज़ में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे नीचे कुछ लोगों ने जिन्होंने मैनेजमेंट को अलग अलग वे में डिफाइन किया, आप लोग अपने से देख लेना, ऐसा कोई नीड ना है इसका। अब हम लोग आते हैं इस पार्ट पे। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट नेसेसरी क्यों है, ताकि इंडिविजुअल अपना हाई कंट्रीब्यूशन कर सके, जिससे कारण कंपनी का ऑब्जेक्टिव को जो है हम लोग अचीव कर सके। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। Later in this chapter, you will understand that although both of them are managers, they functions at different levels in the organization. The time spent by managers in different functions, however, is different. Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at the lower level of the organization. ये देखो क्या लिखा हुआ है। Managers at the top level spend more time in planning and organizing than managers at the lower level of the organization. बात बिल्कुल सत्य है कि जो टॉप लेवल पे होते हैं वो होते हैं CEO, CFO और कंपनी के चेयरमैन होते हैं, तो उन लोग अपना ज़्यादा मतलब अपना दिमाग लगाते हैं कंपनी का प्लान को सोचने में कि कैसे कंपनी रन करेगा, कैसे अपने लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं, सब चीज़ वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहे, इसलिए उन लोग का काम जो है कुछ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स पे। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन एनी एंटरप्राइज। As you have seen from the above example and case study, that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. People in organization are performing diverse tasks, but they are all working towards the same goal. ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी केस स्टडीज में पूछा गया था। People in organizations are performing diverse tasks, but they are ऑल वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। वो लोग देखो ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोग होते हैं, सब लोग अलग अलग टास्क अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो सबका एक ही गोल होता है, वो है कंपनी के प्रॉफिट को अच्छा से इंक्रीज करना और कंपनी के गोल्स को अचीव करना। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक गोल है। क्या है ये? अ गोल। Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved. That is effectiveness with a least amount of resources at a minimum cost efficiency. देखो इफेक्टिवनेस में जो है टी आ रहा है, टी का क्या मतलब होता है? टाइम, यानी अपने काम को सही समय पे पूरा करना। और एफिशिएंसी सी आ रहा है ना, तो सी का क्या होता है? कॉस्ट, यानी अपने काम को सही तरीके से करना विथ मिनिमम कॉस्ट। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद इन टाइम, यानी इफेक्टिवनेस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कॉस्टिंग कम लगाना है, तो वो क्या हो गया? मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी। तो जहाँ कॉस्ट का बात आ गया, यहाँ पे आपका दिमाग तुरंत पहुँच जाना चाहिए कहाँ पे? एफिशिएंसी पे। और जहाँ अपने काम को सही समय पे पूरा करना है, यानी सही टाइम पे, वो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? इफेक्टिवनेस में। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं सबसे टॉप पे। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इतना पढ़ने के बाद हमें फाइनली मैनेजमेंट का एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल गया है, वो है एनसीईआरटी। इस डेफिनेशन को आप लोग याद कर लेना, एग्जाम में लिखने में बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप लोग एग्जाम में एनसीईआरटी के लाइन को लिखते हो तो इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो आपको ज़्यादा नंबर दे देता है, ठीक है? मतलब अच्छा नंबर मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छा नंबर मिल सकता है। Management has therefore been defined a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट इसलिए बोला गया कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम किया जाता है एक एम को सोच के। एक एम क्या है? कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी अपने गोल्स को अचीव करना है और उसमें जो काम होगा वो प्रॉपर समय से और कम खर्च में हो।
इसलिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का यूज़ हुआ है यहाँ पे. वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशंस. There are certain terms which required elaboration. These are process, effectively and efficiently. अब यहाँ पे हम लोग ये तीन जो वर्ड है process, effectively and efficiently, इन सब के बारे में बताया जाएगा. Process is the definition means that primary functions or activities that management perform to get things done. Process क्या है? Process is the definition means that primary functions or activities that management perform to get things done. Process क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज़ है जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है अपने काम को पूरा करने के लिए. दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये जो है इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट तकरीबन कितने प्रोसेस होते हैं, तो बोला जाता है 4 होते हैं. कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. कौन से होते हैं? POSDC. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है. जब हम लोग पढ़ते थे वो था POSDC. P मतलब क्या हो गया? प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, D मतलब डायरेक्टिंग और C मतलब कंट्रोलिंग. तो आप ऐसे शॉर्ट टर्म से भी याद कर सकते हो. क्या बोल सकते हो? POSDC, ये ऐसे भी बोल सकते हो. तो इससे आप लोग को एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा और आराम से आप लोग इसको याद कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो. विच विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर एंड द बुक. हाँ, ये हम लोग इसको लेटर समझेंगे क्योंकि चैप्टर 4 डाटा में शायद चैप्टर 4 प्लानिंग है, चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग है, चैप्टर 6 स्टाफिंग है, चैप्टर 7 डायरेक्टिंग और चैप्टर 8 कंट्रोलिंग है. एक पर्सनल चैप्टर दिया गया है इन सब टॉपिक का. अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ में. बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली. बीइंग बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क. इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इन कंसर्निंग विद डूइंग राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स. इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. अब इफेक्टिवनेस में बेसिकली माना, एक मिनट, सॉरी यार, हटाओ इसको. इफेक्टिवनेस में बेसिकली माना इन मैनेजमेंट माना गया है कि इसमें अपने काम को पूरा तरीके से सही करना होता है, वो भी सही समय पे, टाइम पे करना रहता है. इसलिए इसको बोला जाता है कि इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपको केस स्टडीज़ में रूप में मिल सकता है कि विच प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न विद द एंड रिजल्ट. तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? इफेक्टिवनेस. एंड रिजल्ट देख के मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, वो एफिशिएंसी लगा देते हैं. इसलिए एंड रिजल्ट जहाँ पे आ जाए केस स्टडी में, वहाँ पे आपको इफेक्टिवनेस लिखना पड़ेगा. बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क. भाई काम करना तो सही है, मतलब काम किया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन सिर्फ काम ही करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या पता कि अगर मान लो हम लोग एक कंपनी जो 2 शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो भी मतलब एक दिन में ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मतलब 2 शर्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में उन लोग का तकरीबन जो है 2000 के आसपास जो है कॉस्टिंग आ गया. तो यहाँ पे उन्होंने अपने काम को तो पूरा कर लिया, वो एक दिन में उस 2 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर भी दिया, लेकिन कॉस्टिंग कितना है? बहुत ज़्यादा हो गया है. तो हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते हैं. Efficiency means there is another aspect also, that is being effective, or as they say, doing work efficiently. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. ये देखो, efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. Efficiency क्या आ रहा है यहाँ पे? C यानी cost आ रहा है ना, यानी अपने काम को तो सही करना है लेकिन कम से कम खर्चे में पूरा करना है. तो यही यहाँ पे बोला गया कि एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट. देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, दैट इज द इनपुट्स, मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड, दैट इज द आउटपुट. द एफिशिएंसी हैज इंक्रीज्ड. Efficiency is also increased when for the same benefit or outputs fewer resources are used and less costs are incurred. Efficiency also increase है और ऐसे भी बढ़ सकता है अगर हम लोग सेम बेनिफिट और आउटपुट यूज़ करें, रिसोर्सेज कम ले और उससे हम लोग अच्छा प्रोडक्शन कर सकें. और ज़्यादा कम रिसोर्सेज यूज़ करने से क्या होगा? कॉस्ट भी जो है कम लगेगा, और हम लोग अच्छे से अगर काम करेंगे तो कॉस्ट भी कम लगेगा. अब मान लो आप लोग को एक एग्जाम्पल के रूप में समझो, ठीक है. यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ आपको. एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ठीक है. ये ए कंपनी जो है शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है विद इन 1 डे, और एक कंपनी है सी. ये कंपनी ए जो है शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो 1000 शर्ट्स जो है 2 दिन में उसको बनाने का टास्क दिया गया था और बोला गया था कि कॉस्टिंग 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. वो उसने जो है 2 दिन के अंदर शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर भी दिया, लेकिन कॉस्टिंग 1000 हो गया. तो आप इस कंपनी के साथ रहोगे? नहीं.
दूसरी तरफ बी कंपनी है जिसको भी सेम टास्क दिया गया था कि भाई आप शर्ट को प्रोडक्शन करोगे विद इन 2 डेज और इसका कॉस्टिंग 500 नहीं होना चाहिए। ये कंपनी ने उसको मानते हुए अपना काम प्रोडक्शन शुरू कर दिया। शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग तो किया लेकिन टाइम कितना ले लिया इन्होंने, 3 से 4 दिन ले लिया और कॉस्टिंग कितना लगा 450। तो यहाँ पे कॉस्ट इन्होंने कम कर दिया लेकिन अपने टाइम को मतलब अपने काम को सही टाइम पे पूरा नहीं किया। तो आप इस कंपनी के साथ रहोगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ सी कंपनी है, इसको भी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम मिला। ये बंदे मतलब इस कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से शर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग किया, विद इन 2 डेज शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया और इसका कॉस्टिंग भी जो है 500 से नीचे रहा। तो यहाँ पे ये कंपनी इफेक्टिवनेस भी है और एफिशिएंसी भी है। ये इफेक्टिवनेस भी है, ठीक है, और एफिशिएंसी भी है। तो हम लोग इस कंपनी के साथ रहेंगे। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जो जिसके अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का क्वालिटी रहता है, ठीक है। हाँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। इनपुट रिसोर्सेज आर मनी, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डू अ पार्टिकुलर टास्क. Obviously, management is concerned with the efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to higher profit. Management जो है basically management is concerned with the efficient use of these resources because they reduce cost and ultimately lead to higher profits. If management basically देखा जाता है कि काम जो है efficient way में use हो सके, यानी कम से कम resources लगे जिससे का इनका costing कम हो जाए और इससे जो है इनको higher profit मिल सके. अब हम लोग देखने वाले हैं efficiency versus effectiveness. These two terms are different but they are interrelated. ये दो टर्म जो है डिफरेंट तो है लेकिन क्या है, इंटररिलेटेड, यानी एक दूसरे से रिलेट करते हैं. फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि हम लोग वही कंपनी प्रेफर करेंगे जो कि इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंसी भी हो. इसीलिए फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा कंपनी जो है बोथ इफेक्टिव और एफिशिएंट भी हो. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है बेसिकली दो कॉइन होती है, एक दो साइड होती है कॉइन का. जैसे कॉइन में हेड और टेल होता है ना, तो एक तरह का कॉइन समझ लो जिसके एक तरफ है इफेक्टिवनेस लिखा हुआ, दूसरी तरफ लिखा हुआ है एफिशिएंसी. But these two aspects need to be balanced and managed at time, has to compromise with efficiency. For example, it is easier to be effective and ignore efficiency, that is complete the given task but at higher cost. सपोज अ कंपनी, हाँ एक एग्जाम्पल आगे, एग्जाम्पल समझना और क्लियर तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया था वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सपोज अ कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स. टारगेट मिल चुका है, वो है 5000 यूनिट्स इन अ ईयर. To achieve this target, the manager has to operate on double shifts due to power failure. Most of the time, the manager is able to produce 5000 units but at a higher production cost. यहाँ पे इन्होंने 5000 यूनिट एक साल में कंप्लीट तो कर दे लेकिन कितना हायर प्रोडक्शन कॉस्ट लगा गया है. तो यहाँ पे ये कंपनी क्या हुआ, यहाँ पे ये कंपनी इफेक्टिवनेस है, नॉट एफिशिएंसी. काम तो पूरा कर लिया इन्होंने, प्रोडक्शन कर दिया 5000 यूनिट एक साल में, लेकिन यहाँ पे इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे ये कंपनी इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है. इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव. हाँ देखो लिखा है ना, द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट. सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स लेबर एंड कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वेयर यूज्ड. ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बहुत एक अभी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको. ठीक है, ये वाला जो है ना, ये एग्जाम्पल ये याद कर लो ना, मतलब ये देख लेना. ये मेरे बोर्ड एग्जाम में, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 2022 में, ये पूछा गया था ये वाला पूरा तरीके से. और ये CUET जब मैंने 2022 में दिया था उसमें भी ये वाला जो है पैराग्राफ जो है एज ए केस स्टडी बनकर आया था. तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. At times, a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, that is cutting down the cost but not achieving the target production. Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enters the market. यहाँ पे इन्होंने बताया कि मान लो आप कॉस्ट कम करने के चक्कर में जिस यूनिट का डिमांड मान लो 5000 था एक साल में, उस यूनिट को कम कॉस्ट में बनाने के चक्कर में वो 5000 यूनिट जो है 2 साल बाद सप्लाई किया जाएगा. तो क्या लगता है 2 साल बाद डिमांड सेम रहेगा? नहीं, डिमांड कम हो जाएगा और क्या पता दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाए उस मार्केट में. इसीलिए यहाँ पे जो है कंपनी को इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए. अब यहाँ देखते हैं हम लोग एक और. दिस इज अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट. मैंने बताया कि एक एफिशिएंट का केस हो गया. यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने टाइम बहुत ज़्यादा लिया प्रोडक्शन करने का लेकिन कॉस्टिंग कम कर दिया. तो ये एक एफिशिएंट का केस है, बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट. Therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources, that is as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. यहाँ हमें बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है effectiveness और efficiency का.
Usually, high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managements. But undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन. पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनएफेक्टिवनेस. ये भी लाइन आया था. ये सब सारा मतलब पूरा क्लियर तरीके से मेरे एग्जाम में आया था. ये भी आ सकता है कि विच मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनएफेक्टिवनेस, दैट इज पुअर मैनेजमेंट. अब हम लोग देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि एक बार में ये चैप्टर बहुत बड़ा है और एक बार में अगर मैंने खींच दिया तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बोर होने लगा क्योंकि वीडियो तकरीबन 1.5 घंटे का बन जाएगा. तो उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है, आराम आराम से चलना है, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस. Characteristics of management. After going through some of the definition, we find some element that may be called the basic characteristics of management. Management is a goal-oriented process. मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. और मैं आपको बहुत बता दूं अभी शुरुआत में, कैरेक्टरिस्टिक से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में आता है. मेरे टाइम पे आया था, सीयूईटी में भी आया था. तो बहुत ध्यान से इस लाइन को, इस मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से देखना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलना. An organization has a set of basic goals which are the basic reason for its existence. मैनेजमेंट के पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बेसिक गोल्स है, इसी वही एक गोल्स के रीजन ही से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप लेता है. दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स. फॉर एग्जांपल, द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स, बट द गोल ऑफ द स्पेक्टिस सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. हर ऑर्गेनाइजेशन का जो है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका सबका डिफरेंट गोल्स होता है. एग्जाम्पल में कहा गया है कि अगर एक रिटेलर स्टोर का गोल क्या होगा कि वो अपने सेल को बढ़ा सके, लेकिन एक ही तरफ एक सोसाइटी का क्या होता है, एक जो स्पेसिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इनका गोल क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन जो है चिल्ड्रंस को दे सके, जो नीडी चिल्ड्रंस है, सब बच्चों को एक शिक्षा दे सके. मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स. मैनेजमेंट जो है सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक यूनाइट करता है, यानी एक तरफ लेकर आता है, जिससे कारण ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग अचीव कर सके. ये आप लोग अपना पढ़ लेना, ये वाला ब्लू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड. मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से केस स्टडीज पूछा गया था. मेरे को अभी तक याद है कैसे पूछा गया था. इन्होंने यहाँ से उठाया था, बोला गया था कि पहले केस स्टडीज को ना अच्छा से रीड करो, बताना तो कि मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज हुआ है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया था. एन ऑर्गेनाइजेशन से लेकर मैं बताता हूँ, इतना लंबा था ये पूरा, मतलब ये लगा था पूरा पैराग्राफ इन्होंने पूछ दिया था, यहाँ तक इन्होंने पूछ दिया था. और एक नंबर के क्वेश्चन में स्टार्टिंग पे इन्होंने ये भी पूछ दिया था. तो ये बहुत ध्यान से आप लोग देख लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना. अब हम लोग आते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब मैनेजमेंट हर जगह लगता है. जहाँ आपको केस स्टडीज में दिख गया मतलब यहाँ मैनेजमेंट यूज हो रहा है, वहाँ यूज हो रहा है, यहाँ वहाँ, तो मतलब समझ रहे कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यानी मैनेजमेंट हर जगह लगता है. The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social, or political. A petrol pump needs to be managed as much as hospital or school. ये वाला जो लाइन है ना, ये भी पूछा गया था. A petrol pump needs to be managed as much as a hospital or a school. What managers do in India, the USA, Germany और Japan is the same. How they do it may be quite different. ये वाला जो है ना, ये पूरा ये क्वेश्चन पूछा गया था. और जापान इज द सेम, हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द इन डिफरेंसेज इन कल्चरल ट्रेडिशन एंड सोसाइटी. ये पूरा लाइन पढ़ लेना, ये पूरा लाइन मेरे से पूछा गया था. ये पूरा, ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ मैं कि आपको याद रहे. ठीक है. अब ये है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. यहाँ पे देखो मैनेजमेंट ऑल परवेसिव में हम लोग यहाँ से पढ़ के तो पता चल गया कि पेट्रोल पंप हो उसको भी मैनेज करना पड़ता है, हॉस्पिटल को भी मैनेज करना पड़ता है, स्कूल को भी मैनेज करना पड़ता है, हर जगह. तो मैंने बताया था ना, परवेसिव का मतलब होता है हर जगह यूज होना. यानी मैनेजमेंट हो जो है स्कूल को मैनेज करने में यूज हो रहा है, पेट्रोल पंप को मैनेज करने में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल को मैनेज करने में यूज हो रहा है. अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3, यानी मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है. मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशंस. कौन कौन से डायमेंशन है? पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क. इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड, एंड इन हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड. मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन टू अचीव इट. ये देखो ये लाइन, ये भी पूछा गया था. मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क आ गया नहीं, मैनेजमेंट का ट्रांसलेट कर रहा है वर्क को in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it.
This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned and authorities to be delegated. ठीक है, अब देख लेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल का. मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ह्यूमन रिसोर्स या कहे इंसान जो कंपनी में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़े एसेट्स है. अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स यानी उनके जो काम करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग मन लगा के उस कंपनी में काम करें तो वो कंपनी को बहुत हाई प्रॉफिट तक ले जा सकते हैं. इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है कि कंपनी के सबसे बड़े एसेट्स कौन होते हैं? वो होते हैं उनके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और वो लोग जो उस कंपनी के साथ उस कंपनी में काम कर रहे हैं. Despite all development in technology, getting work done through other people is still a major task for the managers. Management people has two dimensions. Management people के पास क्या है? दो dimensions है. एक मिनट. It implies dealing with employees. It implies dealing with employees as individual with diverse needs and behavior. It also means dealing with individual as a group of people. The task of management is to make people work towards achieving the organization goals by making their strength effective and their weakness irrelevant. ये भी क्वेश्चन आया, ये भी उठा के पूछा गया था. The task of management is to make people work towards achieving the organizational goals by making their strength effective and their weakness of irrelevant. अब बोल दिया गया था कि कौन सा मैनेजमेंट के किस पार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल और इसका कौन सा सब पार्ट है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल. अब लोग देखने वाले मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. वर्क देख लिए, यानी मैनेजमेंट जो मैनेजर जो है ट्रांसलेट करते हैं वर्क को. ठीक है, मैनेजमेंट जो है वर्क को ट्रांसलेट किया जाता है और गोल्स की तरफ. मैनेजमेंट ऑफ पीपल हम लोग देख लिया. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे. No matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive. This requires a production process which entail the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumptions. This is interlinked with both the management of work and management of people. Management of operation जो है basically interlinked रहता है किससे? management of work और management of people से. और ऊपर बोला गया कि अगर operations नहीं होगा तो कैसे हम लोग input से output में convert कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. तो वही ऊपर बताया गया कि कैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो है एक किसी भी इनपुट को जो है एक आउटपुट में कन्वर्ट करता है. हम लोग देखने वाले मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी चलते रहता है, लगातार चलते रहेगा. द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. These functions are simultaneously performed by all managers all the time. You may have observed that Smita at Namchi Designer Candle performs several different tasks in a single day. Some days she may spend more time in planning a future exhibition, and on another day she may spend time in sorting out an employee's problem. The task of a manager consists of an ongoing series of functions. ये छोटा सा जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी क्वेश्चन आता है. The task of a manager consists of an ongoing series of functions. Ongoing series of functions. ये किसका पार्ट है? ये है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. और इसमें हमने कोई बताया गया है कि कंटिन्यूस प्रोसेस में कैसे स्मिता ने जो है अपने काम को हर चीज़ परफॉर्म किया है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है. ठीक है. अब है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, सबके ग्रुप के साथ होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम नहीं करता है जब तक वो लोग अपने सारे लोगों को एक साथ बैठा कर उनको अपना काम समझा दें. एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स. सही बात है, पहला ही लाइन लिख दिया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कलेक्शन होता है डाइवर्स इंडिविजुअल्स का, जिनका हर कोई का डिफरेंट नीड्स होता है. Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goals. ये वाला line, every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization, they work towards fulfilling the common organizational goals. हर मेंबर जो होते हैं ग्रुप के वो लोग डिफरेंट पर्पस के साथ जो है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं. किसी का पर्पस है कि भाई वो सोशल मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, कोई अलग नीड के साथ आता है. लेकिन यहाँ पे मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के कारण वो लोग क्या करते हैं? कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ चलते हैं. दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शंस. ठीक है. एट द सेम टाइम द मैनेजमेंट शुड इनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज चेंज. हम लोग देखने वाले मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट क्या है भैया? एक डायनेमिक फंक्शंस है. और ये बेसिकली आज का आखिरी पॉइंट होगा, ये मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन वाला. फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स.
In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक यानी चेंजिंग, चेंज हो रहा है ना? तो यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है ये an organization interacts with its external environment which consists of various social, economic and political factors. In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. ये आ जाएगा, ये पक्का आएगा, इसको लिख लेना. You probably know that McDonald's, the fast food giant, made major changes in the menu to be able to survive in the Indian market. मैकडोनल्ड जो कंपनी है, इन्होंने अपने मेन्यू कार्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस किया था ताकि वो इंडियन मार्केट, इंडियन मेन्यू को थोड़ा मैच कर सके और इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके. तो इन्होंने अपने मैनेजमेंट थोड़ा चेंजिंग किया ना. तो जहाँ चेंजिंग का नाम आ जाए कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस के कंडीशंस को देख के जो है अपने मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस ला रहा है, तो जहाँ चेंजेस का बात आ जाए ना, वहाँ हम लोग को लगाना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. तो ये कुल मिला के 6. हाँ, ये रहा एक तो और है, मैंने तो भूल ही गया था, सॉरी. ये है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब समझते हो? टेंजिबल जिसको आप छू सकते हो, आप अपने हाथ को छू सकते हो, तो ये टेंजिबल हो गया. और इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको हम ना ही छू सकते हैं. मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन. मैनेजमेंट क्या है भैया? एक इनटेंजिबल फोर्सेज है जिसको हम लोग देख नहीं सकते लेकिन इसके प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करता है. The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans. Employees are happy and satisfied and there is orderliness instead of chaos. ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है. द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी सेटिस्फाइड एंड देयर इज अ ऑर्डिनेंस इंस्टेड ऑफ केओस. हम लोग मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन हम लोग मैनेजमेंट को महसूस कर सकते हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से हो रहा है, गोल्स प्रॉपर अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, बिना कोई दिक्कत के काम हो रहा है, कोई केओस नहीं हो रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैप्पी सेटिस्फाइड है, कस्टमर्स बहुत खुश है, तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. तो देखो यही कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे मैनेजमेंट को. उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गए होंगे. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि मैंने पहली बार एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ. क्योंकि आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगता होगा, इसलिए मैं सोचा आप लोग को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में एनसीईआरटी पढ़ाएं. आप मेरे साथ पढ़ो, ठीक है. और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा. और जो मैंने बताया है कि भैया मतलब ये केस स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना. तो चलो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.